किरण के द्वारा बहुत प्रोत्साहन देने वाली वचन हमें मिली। We heard a very encouraging word from Brother Kiran. मसीह जीवन में मैं एक ऐसा सर्किल बनाता हूँ मैं। So in the Christian life, I think of it as a circle. ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी को वही सर्किल बनाओ। I'm not saying that even you make that kind of a circle. मेरा सर्किल में मैं उस जगह पे रखता हूँ, एक जगह पे, उस सर्किल में एक जगह पे है जहाँ पर मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। So I place that circle at such a point where I say that I can do nothing without Jesus. यानी जब मैं मसीह जीवन शुरुआत किया, That is when I began the Christian life. और उस सर्किल के एक स्थान पे मैं अपने आप को रखा। That I am at that point in that circle of the Christian life. और वहां पर मैं आके कहता हूँ कि यहाँ पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरी ताकत से। And at that point I say that I can do everything but through my strength. अभी वो सर्किल चलते चलते तो थोड़ा ऊपर गया। And as moving through that circle, I go to another place. पहचाना कि मेरा पिछला जीवन मुड़कर देखा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया अपनी ताकत से। And when I look back, I realized that through my strength I could do nothing. पता चला कि मैं एक व्यक्ति के पास जाना चाहता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। And I realized that there is one person I should go to who gives me strength. Philippians 4:13. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through him who strengthens me. Philippians 4:13. Yeah. I can do all things through him who strengthens me. अभी मैंने पहचाना कि मैं अपने ताकत से सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो मैं एक व्यक्ति के पास गया हूँ और जो मुझे ताकत देता है। So I realized that that through my strength I can do nothing. So I go to this person who is the one who can strengthen me. अभी जब मैं यीशु को पहचाना और यीशु के साथ जुड़ा हूँ और मैं सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर। So when I came to know Jesus and when I'm abiding him, I can do things. कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर भी मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। And after some days I realized that even over here I'm not able to succeed. और उस सर्किल की अंतिम दिशा में आया हूँ जहाँ पर आज किरण ने शेयर किए मैं मसीह के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ। And I come to the end part of the circle where like Kiran shared that without Christ I can do nothing. ये मेरे जीवन की एक सर्किल है। And this is the circle of my life. So हमेशा मैं याद रखता हूँ, एक तो मैं यीशु के साथ सब कुछ कर सकता हूँ। And so I always remember this, that first is through Jesus I can do all things. और अंतिम दशा है मैं यीशु के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। And the last thing is without Jesus I can do nothing. और शुरुआत की दशा है मैं अपनी ताकत से सब कुछ कर सकता हूँ। And the earlier condition is that through my strength I can do things. मैं विश्वास करता हूँ यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का भी शायद यही कंडीशन रहेगा, शायद। So I think that a lot of people sitting here maybe have the same condition. जॉन चैप्टर 15 में लिखा, बहुत प्रोत्साहन का अध्याय है ये, जॉन चैप्टर 15। John chapter 15 is a very encouraging chapter. ये एक दाखला था और सिर्फ डालियों के बारे में नहीं बात करती है। This is not just talking about of wine and the branches. ये एक पिता उसकी बच्चे के बारे में बात करते हैं। So a father is talking about his children. जैसे कि वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। And like it says that I am the vine and you are the branches. जैसे कि मैं पिता हूँ, आप सब मेरे संतान हो। That I am the father and you are my children. अगर दाख में बनी नहीं रहेगा, वो फलेगा नहीं। If the branches are not part of the vine, then it will not be fruitful. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा जोशुआ को एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। Just like I can take Joshua's example. और वो हर संडे मेमोरी वर्स के लिए मुझे कम से कम 10 बार आते हैं। So every week he will come to me 10 times for the memory verse. So फ्राइडे तक उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं, सैटरडे आएगा उसको जरूर पिता की जरूरत पड़ेगी। So till Friday he will not know his responsibility. He'll come to me on Saturday. So सैटरडे सोने से पहले मेरे पास आते हैं, अभी से कहो मेमोरी वर्स। So Saturday since morning he will come to me that I should teach him the memory verse. So मेरे बाजू में बैठा के उसको अच्छी तरह से समझाता हूँ, इस तरह से बताऊँ। So I make him sit besides me and I make him understand. 10 मिनट के बाद वो भूल जाता है। And after 10 minutes he forgets. वापस आता है।
And then again he comes. वापस मैं सुलाता हूँ And then again I make him और प्यार understand. से समझाता हूँ And more lovingly I make him और 20 understand. मिनट के बाद वापस आके बोलते डैडी लास्ट में भूल गया And after 20 minutes again he comes and says that daddy I forgot. और सुबह हो जाता है वापस आता है And the next day he comes again and says that I forgot. आखिरी मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 मिनट पहले चर्च शुरुआत होने से पहले मेरे पास आया वो And just 10 minutes before church began, he comes वो to me कंफर्म करने के लिए आया कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ just to confirm whether he's saying it the right way or no. मैं सोचा कि ये क्यों हो रहा है And I was thinking, why is this happening? मैं सोचा कि ये पिता के साथ बच्चे का रिश्ता टूट रहा है And I was thinking that this relationship with the father is इसके broken. लिए वो फलवंत नहीं हो पा रहा है That's why he's not being fruitful. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं दाख लाता हूँ तुम डालिया है And that's why Jesus says, I am the vine, you are the branches. जब तक डालिया दाखलत में नहीं बने रहेगा वो फलवंत नहीं होएगा Unless the branches are abiding in the vine, they will not be fruitful. अगर वो कंटिन्यूस मेरे साथ लगातार रहता था शायद वो नहीं इतना बार मेरे पास नहीं आता था So if probably if he was continuously abiding with me, he would not come to me later. सो यूहन्ना का किताब यही हमें बताता है कि पिता और उनकी बच्चे के बारे में जो रिश्ता के बारे में बताती है So this thing also talks between the father and the मुझे children. बहुत प्रोत्साहन मिला जब किरण शेयर करते समय I was very encouraged when Kiran shared this. हम सबका अनुभव रहेगा कि एक समय है कि जब यीशु के पास आया अपनी ताकत लेकर लेकिन आपने हार मांगा और आपने पहचाना कि अभी यीशु मसीह के साथ ही मैं कर सकता हूँ So this is the experience of all our lives that that we cannot do anything on our own, but when we come to Jesus, only then we can do all things. और हम पतरस का जीवन में भी देखते हैं वो यीशु के साथ इतना समय बिताने के बाद एक And- समय आ गया उसके पास वो एक दिन मछली भी पकड़ नहीं पाया And we see that even in the life of Peter, that he spent so much time with Jesus, but there came a time in his life when he could not even fish on his own. ये सर्किल की 3 दशा हम पतरस के जीवन में एक बार जोड़ सकते हैं And this same circle that I spoke about, we can see in Peter's life also. एक समय था उसकी ताकत से बहुत सारी मछलियां पकड़ता था And at one point of his life, he could catch a lot of fish on his own strength. जब यीशु के पास आया When he came to ये Jesus, सर्किल में दूसरी दशा he came to another point in और the यीशु ने circle कहा कि where Jesus said मेरे सिवा आप कुछ भी नहीं कर सकते that without me you can do nothing. जैसे कि वचन में लिखा है कि मैं जो कुछ सामर्थ देता हूँ उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ And like it says in the verse that through my strength you can do all. और यीशु के साथ चलने के बाद इतना साल उसके साथ सहभागिता करने के बाद एक दशा में पहुंच गया सर्किल में आखिरी दशा में वो कहता है कि मैं मसीह के सिवा कुछ नहीं कर सकता हूँ And after walking with Jesus, he came to that point of that circle where he says that without Christ I can do nothing. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इसको हम एक बार अपने इस सर्किल को आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह हमारा सर्किल घूमती दशा घूमती है सर्किल के ऊपर So brothers and sisters, we can look at this circle and we can see that how we are moving in this circle. सो और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जब ये मेरा बचपन की निज स्टोरी है And another thing I want to share is a story of my childhood. मैं अपना दादाजी का गाय बैल को पालते थे बचपन में That I would look after the cows and buffaloes of my एक दिन grandfather. मैं अपना दोस्त के साथ गाय बैलों को चराने के लिए खेत में लेके गया था So one day along with my friends, I took the cows for pasture. और मेरा दोस्त और हम लोग खेल कूद में पड़ गए हम गाय बैलों को ऐसे ही छोड़ दिया And we got busy playing and we just left the cows on it. और ये गाय बैल किसी का खेत में जाके उसकी खेत को नुकसान कर दिया And one of the cows entered someone else's farm and destroyed it. और किसान आया मेरा दोस्त को इतना जोर से मारा कि रोने लगा And my friend hit that other farmer so hard that he started crying. किसान आके उसको मेरा दोस्त को बहुत जोर से मारा Sorry. The farmer came and hit my friend so hard that he started crying. और ये मेरा दोस्त उस किसान के प्रति बहुत क्रोध रख दिया And my friend got very angry with that farmer. और किसान जाने के बाद उसने एक तलवार लिया And after the farmer left, he took a sword. और जो किसान ने खेती डाला उस खेती को जमीन के अंदर से काट दिया And whatever the farmer had sown, he was cutting with the sword. He was cutting all the crops. वो किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि तलवार जमीन के अंदर डाल के उसको खेत को काटता Nobody would come to know because he put the sword inside the soil, and from the soil he removed the किसान crops. रोज आते पानी डाल रहे हैं And every day the farmer is coming and putting water. किसान को पता नहीं कि वहां क्या हो गया अंदर And he's not the farmer is not knowing that what has happened वो beneath. किसान को उम्मीद था एक दिन ये फल लाएगा ये खेत
And the farmer was hoping that one day this will bear fruit, रोज वो मेहनत कर रहे हैं, that every day he's working hard. लेकिन रोज रोज देखते जा रहे हैं कि जो डालियां है वो सूखते जा रहे हैं। And every day he's seeing that the branches are getting dried up. पता चला कि एक दिन उसने जस्ट उस डालियों को पकड़ के ऐसे खींचा तो आसान से बाहर आ गए जमीन से। And one day when he just slightly pulled the branches, it came out. मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर, Why am I saying all this? जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ टूट जाता है, That when our relationship is broken with God, हम सोचेंगे कि अभी भी फल लाएंगे। that we think that we can still bear वो fruit. सर्किल में पहली दशा होगा जहां आपकी ताकत से जो कर सकते हैं, We will reach that point in the circle where you will do things on your own strength. कुछ नहीं कर सकते हम लोग अभी, We cannot do anything क्योंकि वो जो दाग लता से वो डालियां अलग हो चुका है। because the branches are separated from the vine. तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पश्चाताप का दिल दे, So let's pray to God that God give me a heart of repentance. मुझे मन फिराओ की दिल दो। That give me a heart to repent. जहां पर मेरा रिश्ता आपके साथ टूट गया है, That where my relationship is broken with you, वापस उसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। that it will be joined again. और यीशु मसीह हमको मदद करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। And because God has given us the Holy Spirit for that. सो अभी ये वचन हम कोरिन्थियंस की किताब में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देते हैं उसके द्वारा सब कुछ फिलिपियंस सब कुछ कर सकता हूँ। So we read that in Philippians 4:13। Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through him who strengthens me. अभी ये ताकत कहाँ से आएगा हमको? So from where will this strength come? अभी ये ताकत पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल से वो बहते जाएगा। So this strength comes to us through the Holy Spirit. तो इससे क्या होएगा? So what will happen through this? ना कि हमारा जीवन आशीष और हमारा जीवन से जीवन की नदियां बहते जाएगी। And our life will become a blessing for others. क्योंकि ये काम किसने शुरू किया है? But because who's the one who began this ये work? प्रभु ने शुरू किया है। It is Jesus who began और this work. इसको शुरू करने के लिए माध्यम क्या इस्तेमाल किया है? पवित्र आत्मा। And through what has he started this work? It is through the Holy Spirit. So पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते आज। So without the Holy Spirit, we cannot do anything. आप सोचेंगे मैं करके सक्सेस हो जाऊंगा। That you can think that you can be successful without शायद anything. कई भी कहेंगे कि मैंने बहुत बार सक्सेस भी हुआ हूँ। And you can even say that sometimes you have been successful. लेकिन वो हो सकता है कि वो बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। But it can be that was without the Holy Spirit. So हम याद रखेंगे कि एक जीवन में एक स्तर पे पहुंचेंगे, प्रभु आपके सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। So we have to remember that we have to come to that point where we say that Lord, without you we can do nothing. हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान पे पहुंचना चाहिए कि शून्य बनना चाहिए हम। We have to reach such a point where we say that we have become a zero. प्रभु उसी वक्त आपके जीवन में कार्य शुरू करना चाहेंगे। And it is that point where God will begin working in your life. Praise God. जैसा कि हमने सुना कि हम परमेश्वर के अंदर बना रहना चाहिए, उसका संगति में उसका Just like we heard that we should abide in him, हम कैसे उसके साथ बने रहेंगे? how can we abide in him? परमेश्वर शुद्ध है, पवित्र है, हमको ये चीज हमेशा याद रखना चाहिए। We should always remember that the Lord is holy and pure, और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। and we are his children. अगर हमारा विवेक शुद्ध नहीं है, If our conscience is not clear, अगर हमारा जीवन हमको परमेश्वर कुछ बातों को बता रहे, हम उस चीज को रिपेंट नहीं कर रहे, हमारा शुद्ध नहीं कर रहे अपने आप को, सैंटिफाई नहीं कर रहे अपने आप को। if we are not listening to the Spirit of God and cleansing ourselves and cleansing our conscience, अगर परमेश्वर बता रहा आपको, इमीडिएटली हमको शुद्ध होकर हम परमेश्वर के साथ बना रह सकते हैं, रिपेंट करके। so if we repent, then we can come back in connection with God. अब परमेश्वर हमेशा रेडी है हमको हेल्प करने के लिए हर परिस्थिति में। Then the Lord is always ready to help us. एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रदर किरण ने शेयर किया What Brother Kiran shared was of great help to me. कि वो लोगों को माफ नहीं, जिससे कुछ भाई को माफ नहीं कर पा रहा था। The example that he gave, that he was unable to forgive another brother.
मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक भाई बहन हम सभी जने फेस करते हैं। So I believe that each one of us have to face this sort of a situation. हम ये फेस करते हैं कि यार ये भाई मेरे साथ ऐसा किया है, We feel that maybe this brother or sister has done this to me. ये भाई मेरे सभी के सामने मेरा इंसल्ट किया। This brother has insulted me in front of everybody. बहुत सारा चीज हो सकता है, जो हो सकता है हमारा कुछ फाइनेंशियल नुकसान किया रहेगा। Maybe he's done some harm to us. ये बात हमको याद रखना चाहिए कि हमको उस भाई को या उस बहन को हमको माफ करना चाहिए। मेक श्योर हमारा हृदय को हम जज कर सकते हैं कि प्रभु मैंने उस भाई को माफ किया है कि नहीं। हम अपने आप को देखो। We should judge ourselves and check ourselves to see, examine ourselves to see whether we have forgiven the person. ये चीज बहुत सीरियस है, This is a very serious thing क्योंकि वचन में लिखा है because the word says, अगर तुम दूसरे के पापों को माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता तुम्हारे पापों को भी माफ नहीं करेगा। because the Lord said that if you do not forgive your brother, the Father in heaven will not forgive you your sins. हो सकता है कि हम माफ करें, जैसे हम मुंह से प्रभु मैंने उस भाई को माफ कर दिया। Maybe we say it with our mouth that I have forgiven this brother. लेकिन आपका मन में, जैसे ब्रदर किरण बता रहा था कि मन में तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारा अंदर से निकल क्या रहा है। But we need to examine ourselves and see, maybe with our mouths we have said we are forgiven, but what is coming out of us? What is the attitude that we have towards the person? मैंने ये फेस किया, I have faced this. जब भी उस भाई को मैं देखता था मुझे गुस्सा आता था Whenever I would see that brother, anger would rise up in me. और मेरा माइंड में प्लान बनता था कि ये भाई के साथ कोई झगड़ा करे और उस भाई झगड़ा करके या कुछ उसको मारे या कुछ उसका नुकसान करे। So I would scheme in my mind and I would plan that I will do such a thing to him that I will hurt him. ये सब चीज हमारे अंदर से निकलता है। These are things which come out of our hearts. जब परमेश्वर ने मुझसे बात किया वचन के द्वारा, But the Lord spoke to me through his word. तुम अपने भाई को दिल से माफ करो। He told me that I should forgive my brother from my heart. मैं बोला प्रभु मैं नहीं कर सकता है। So I told the Lord that, Lord, I cannot do it. मैं नहीं कर सकता, कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बट मैं नहीं कर सकता हूँ। I told the Lord that I'm trying, but I'm not able to forgive him. प्लीज मुझे हेल्प करो। So I asked the Lord to help me. इसका परिणाम ऐसा हुआ ना, And इसका परिणाम ऐसा हुआ the result of this was कि this. प्रभु ने मुझे वो ग्रेस दिया, प्रभु ने वो मेरे अंदर नेचर डाला कि मैं दूसरे भाई को दिल से माफ करूं। So then the Lord gave me the grace and I was able to forgive that person. और उस भाई के साथ में संगति कंपल्सरी नहीं हम जाके उससे फेलोशिप कर सके, हम यहाँ पर बैठ कर भी उस भाई को कंप्लीटली माफ कर सकते हैं जो हमारे विरोध किया है। It may not be that you're able to have fellowship with that brother, but sitting here, you can forgive that person from your heart. बट मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं जाके उसके संगति भी किया, उसके चाय पिया, अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। But with me, it was so that I was able to fellowship with that brother and have a cup of tea with him. तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि ब्रदर जोसेफ ने भी कोट किया वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ही है। इसमें लिखा वचन का शुरुआत इस तरह होता है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारा मन में डाला। मतलब परमेश्वर हमको इच्छा भी दे रहा है और वो एबिलिटी भी दे रहा है करने के लिए। So we see in Philippians chapter 2 and verse 13, but it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर हमको अनुमति देने चाहिए, प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे प्लीज हेल्प करो उस भाई को माफ करने के लिए, उस भाई के साथ में अच्छा कुछ भला करो, उस भाई के लिए प्रार्थना करो। So when we ask the Lord to work in us and we tell the Lord that, Lord, help me to forgive this person and help me to have a good relationship with him. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर 100% हमारे जीवन में काम करेगा। And then I see that the Lord will do that work in me. ये बात सच है। This is very true. ये बात सच है। This is true. मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत सीरियस चीज है। I'm just telling this because this is a very serious matter. क्योंकि परमेश्वर तुमको माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। Because God will not forgive you. तो इसलिए हमको प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं इस भाई को दिल से माफ करो, चाहे सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो कोई भी हो। So we have to ask the Lord to forgive
the sister or brother from the depths of our heart. इसलिए परमेश्वर बता रहा है कि हम पर यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। That's why the Lord is reminding us that without the Lord Jesus, we can do nothing. जो अनंत काल तक रहने वाला है परमेश्वर हमारे अंदर वो प्रोवाइड करेगा, मतलब जो अनंत काल का लिए ठहरने वाला है वही चीज हम परमेश्वर हमको मदद करेगा करने के लिए। हम बाकी सारा चीज हम ऐसे करते रहेंगे। The work that we do, if it has to remain till eternity, then it is only if the Lord does that work in us. God bless you. Yeah. As we started with John 15, और जैसे यूहन्ना अध्याय 15 से शुरुआत हुई थी, as it says, abide in me and abide in you, and besides me, you can't do nothing. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। You can't bear fruits, तुम फलवंत नहीं हो सकते। underline fruits. तो वहां पर फल को आप लाइन मारे। So do we know what are the fruits are? तो क्या हमें जानते हैं कि फल क्या होते हैं? So first of all, to bear that fruit, we should know who we are. तो सबसे पहले फल उत्पन्न करने के लिए हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं। Let's see it in 1 Corinthians आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियन chapter 3, उसका 3रा अध्याय 16. उसका 16वां वचन। Do you not know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? So we are known as a temple of God, तो हम परमेश्वर के मंदिर कहलाए जाते हैं and the Holy Spirit dwells in us. और पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहते हैं। So what are the fruits? तो फल क्या है? The fruits are the Holy Spirit, through the Holy Spirit, isn't it? और ये फल पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये उत्पन्न हो जाएगा। And only through the Holy Spirit we can bear fruits. और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ये फल उत्पन्न कर पाएंगे। How I can prove that? और मैं इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ, सिद्ध कैसे कर पाऊंगा? 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्थियन अध्याय 3 उसका 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहाँ, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु क्या है? Who is the Lord? Lord is a spirit. तो यहाँ कहता है परमेश्वर आत्मा है Where the spirit dwells in और जहाँ पवित्र आत्मा रहते हैं the temple. मंदिर में। And who are the temple? मंदिर कौन है? Not these 4 walls. ये 4 दीवारें नहीं, We. हम। When the Holy Spirit dwells in, then we will bear fruits. जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहेंगे तब हम फल उत्पन्न करेंगे। How we will bear fruits? हम कैसे फल उत्पन्न करेंगे? John 3:16. और यूहन्ना अध्याय 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। No. Sorry. 2 Corinthians 3:16. दूसरा कुरिन्थियन उसका 3 का 16 वचन। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। The day we turn our face towards the Lord. और वो दिन जब हम अपना चेहरा परमेश्वर की ओर फेरेंगे। And the 17 says, now the Lord is a spirit, and with the spirit of the Lord, there is freedom. और तब 17 वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जहाँ आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। To abide in Christ, और यीशु मसीह में रहना, we need to turn towards the Lord first. सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर फिरना जरूरी है। The reason why I'm saying this, और मैं इस कारण कह रहा हूँ, without the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के बगैर we can't bear any fruits. हम एक भी फल उत्पन्न नहीं कर We पाएंगे can't do any things. और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Because it says, 2 things life if we live in. If we live by flesh or we live by spirit, it will know. That's in Galatians. और ऐसे लिखा गया, या तो हम शारीरिक हो सकते हैं या आत्मिक हो सकते हैं, क्योंकि गलीती अध्याय में वो लिखा गया है। It says in chapter 5 verse 10, but I say walk in the spirit and you will not gratify the desire of the flesh. गलीतियन 5। 5 yes. मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना हो। Galatians 5:10. Oh, sorry. गलीतियन Oh, sorry. 5:16। पर But मैं I say walk in the spirit and you will not
clarify the desire of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा न करोगे। And in 17 it says, for the desire of the flesh are against the spirit, and the desire of the spirit is against the flesh. और 17 वचन कहता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और वो एक दूसरे के विरोधी है। So there's a battle going on now. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युद्ध चल रहा है The flesh and the spirit. शरीर के बीच में और आत्मा के बीच में। So what do we desire? तो हम क्या अपेक्षा रखते हैं? Doing our own खुद का करना or doing the work of the spirit? या पवित्र आत्मा के काम को पूरा करना? That will only happen और ये तब होगा the time we turn our face towards the Lord. जब हम अपना चेहरा परमेश्वर की ओर फिराएंगे। And the day we turn our face towards the Lord, और जिस दिन हम अपना चेहरा परमेश्वर की ओर as फेरेंगे, it says, the Lord is a spirit, और जैसा लिखा है परमेश्वर आत्मा है, and where the spirit of the Lord is, और जहाँ आत्मा है there is freedom. वहां स्वतंत्रता है। We want to get freedom from our fleshly desires. क्या आप चाहते हैं कि आपको शारीरिक अभिलाषाओं से छुटकारा चाहिए? Turn your face towards the Lord. आप अपना चेहरा परमेश्वर की ओर फेरे, The Holy Spirit will start dwelling in you. पवित्र आत्मा आपके भीतर कार्य करना शुरू करेंगे। As more as the Holy Spirit, the more as the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की भरपूरी से the more of the fruits. और उतना ही ज्यादा फल हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। So it's very important over here to understand this now. तो ये बहुत जरूरी है इस बात को हमारे लिए समझना। As we say in Galatians 5:22, it says, but the fruits of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against all these things there is no law. और गलातिया अध्याय 5 का 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। The answer, the main important answer is in, और उसका खरा उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, it says in 24, उसके 24 वचन में, and those who belong to Christ have crucified. और जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर की लालसाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। And those who belong to Christ have crucified the flesh with the passion and the desire. और जो मसीह यीशु में उन्होंने शरीर की उनकी लालसाओं को, अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। If we desire Christ, if we belong to Christ, क्या हम यीशु की अपेक्षा रखते हैं या यीशु के ऊपर भरोसा रखते हैं? if we belong to Christ, क्या हम यीशु के हैं? we have already have crucified our fleshly desires. तो हमने अपने शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। But if we are in the Spirit, लेकिन हम अगर आत्मा में है, living as the Spirit says, पवित्र आत्मा में जी रहे जैसा वचन कहता है, we will bear much fruits. तब हम बहुत फलवंत होंगे। That's why he's reminding us तो इसी कारण वो हमें यहाँ पर बताकर स्मरण दिला रहा है। in 25, verse 25. उसके 25 वचन में, If we live by the Spirit, let us also keep in the step with the Spirit. यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। So without the Holy Spirit, we can't do anything. तो पवित्र आत्मा के बगैर हम ये कुछ नहीं कर सकते। So we need to kill the desire of the flesh. तो हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को मारने की जरूरत है। We should remember that we need to turn our face towards the Lord. और दूसरी बात ये है कि हमें अपना चेहरा परमेश्वर की ओर फेरना है। And the day we do it, और जिस दिन हम ये करेंगे, the Lord is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, And where the spirit of the Lord is, और जहाँ आत्मा है there is freedom. वहां स्वतंत्रता है। Amen. आमीन।